Good morning, everyone. Good morning. Great to see you on Sunday morning. I hope you all are excited as I am, as always. And good morning, Shiv Sagar. Good morning, Falcon International team. Oh my God, you met me at EDX Srinagar. That's nice. Good morning, Vivek. Good morning, Swarkar sir. Okay, great. Okay, so guys, we'll be starting, and the topic is basically scaling up of startup. I'm not sure how many of you attended my last session, but the last session was more about the initial stages of what you have to do during your, initial journey of starting your own startup. So I'll just give you a brief what we spoke about during that time. So it was mostly about why idea validation is necessary, why the problem validation is necessary, and how you can do the market validation as well. So it's very simple. First, you need to identify a problem, then you need to identify your idea, and then you need to take it to the market. So problem validation, idea validation, then taking it to the market. तो मार्केट में लोगों से जाके बात करना है, पूछना है ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं है, ये आइडिया सही है कि नहीं है, और उसको कोलैबोरेट करके एक बारी पूरा एक बिजनेस मॉडल सेटअप कर देने का. ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेजेस. ओके. एंड अगेन लास्ट टाइम जैसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आई वांटेड टू बी इंटरैक्टिव. अगेन मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं बनाया. प्रेजेंटेशन मैं आपको बाद में दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी तो. आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस विद मी प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ, बट आई वॉन्ट एट द एंड ऑफ द डे दैट हमारी जो इंटरेक्शन हो वो ज़्यादा बेटर हो. You need to ask anything, you can ask it on the chat box. And I just want to know that how many of you are there who have already started. Like abhi I can see there are around 26-27 people out there. So any startup who are already there, please say yes in the chat box, because again मैं उसके हिसाब से थोड़ा बात करूँगा. Okay, Shivam Mala is saying yes. Anyone else like who has already started or making some revenue, कुछ पैसे कमा रहे हैं या पैसे कमाने वाले हैं, ठीक है, मतलब अपना आइडिया रजिस्टर करा चुके, कोई भी ऐसे प्लीज. आई रियली वांट टू सी दैट हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर देयर ऑन द कॉल. एंड इवन अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अभी अगर आप बता सकते हो तो थोड़ा बता दो. ओके, शिवम माला technight.com. Okay, next month pre-launch, Falcon International. Okay, anyone else? 3 startups I have got. Anyone else would like to tell? अरे बता दो. संडे संडे सो रहे हो क्या सुबह सुबह है? फोन पे भी सो रहे हो? Okay, so like only 3 startups I would say are there. बड़े लेजी हो यार, कोई हाँ ना ना ही बोल दो. Okay guys, no worries. So I'll tell you why there are more hidden. Okay sir, ideation phase. अच्छा, ideation phase पे. ठीक है. So guys, I'll just tell you exactly why these things जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, why those things are going to be very very important once you start your business or once you start your startup. Okay, so हमने पहले बात करी थी कि प्रॉपर स्टार्टअप बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है. मार्केट वैलिडेशन, आइडिया वैलिडेशन, प्रॉब्लम वैलिडेशन, व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आप लोग एक बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ती है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, या आपको किस किस टाइप से आप बिजनेस मॉडल एक प्रिपेयर कर सकते हो. सो आई more focused towards the business model of the sites, right? Because again business model is very very important to create. And at the end of the day once you have created a business model, उसके बाद आप जाके वो बिजनेस की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो. तो आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि बिजनेस मॉडल जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए. एक बिजनेस मॉडल का टाइप होता है कि आप मिडल मैन बन रहे हो. अच्छा, मिडल मैन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि
एक फार्मर है, फार्मर ने वेजिटेबल्स उगाए अपने खेत में, ठीक है, आप मिडिलमैन बीच में आए और आपने जाके वो एंड कस्टमर को पहुंचाया। सिंपल, दो लोगों पे, ठीक है, एक जो प्रोड्यूसर है या सेलर है, ठीक है, और एक जो बायर है, उसके बीच में आप आ रहे हो, आप अपना कमीशन उठा रहे हो और आप हेल्प कर रहे हो ट्रांजिशन में प्रॉपर, ठीक है। अब वो शायद स्मूथ बना रहे हो, फार्मर डायरेक्टली एंड कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता इतनी इजीली, राइट। तो आप बीच में आते हो, आप पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मैनेज करते हो, पूरा एंड टू एंड ऑपरेशंस मैनेज करते हो, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आपको पता होना चाहिए कि एक ये टाइप है बिजनेस मॉडल का कि जिसमें आप एक मिडिल मैन बन रहे हो। सो आपका जो भी बिजनेस हो, अगर आप एक मिडिल मैन बन सकते हो, जैसे अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा रहे हो, राइट, Amazon है, ओके, अगेन Amazon भी एक तरीके से मिडिल मैन बिहेव करता है, दो इट्स अ मार्केट प्लेस बट इट्स ऑल्सो बिहेव्स एज अ मिडिल मैन, क्योंकि वो सामान उठाता है एक जगह से और कस्टमर तक पहुंचाता है और पूरा एंड टू एंड ऑपरेशंस मैनेज करता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग विच यू कैन डेफिनेटली बिकम। सेकेंड इज अ मार्केट प्लेस। अगेन मार्केट प्लेस मीन्स कि आपके पास बहुत सारा, आप अपने एक प्रॉपर मार्केट ऑनलाइन बना लो, ठीक है, एक प्लेस बना लो, ठीक है, और वहां पे एक वर्चुअल प्लेस बना लो जहां पे आपके पास सारी चीजें प्रोवाइडेड हो, वो आपकी अपनी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे Amazon के अपने प्रोडक्ट्स भी है जो Amazon अपनी वेबसाइट पे बनाता है, ठीक है, प्लस उसके अपने प्रोडक्ट्स तो है ही है, प्लस वो दूसरों से भी प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवा के अपने अपनी वेबसाइट पे दिखाता है, ठीक है, एंड इट कैन सेल इट। अब बहुत सारे फोन्स हैं जो Amazon कहते हैं कि हमारे एक्सक्लूसिव वेबसाइट पे बिकते हैं। ये बहुत सारे फोन्स हैं जो शायद आपको फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पे नहीं दिखे, वो सिर्फ Amazon पे दिखे, ठीक है। सो इट्स अ मार्केट प्लेस। सो दे हैव टाइड अप विद सेवरल कंपनीज, वो बोलती है कि आप हमारे यहाँ पे लॉन्च करो, ठीक है, यू विल गेट दीज बेनिफिट्स बिकॉज हमारे पास जो क्राउड है, जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग भी आगे जाके अपना जो स्टार्टअप है उसको एक मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू फोकस ऑन वन थिंग। जैसे Amazon ने फोकस करा सबसे पहले, जो सबसे पहले Amazon ने फोकस करा था वो था एक तरीके से बुक्स बेचना, ठीक है। तो आप लोग भी फोकस कर सकते हो कि और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इन फर्स्ट यू क्रिएट एन MVP। MVP बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस मॉडल से। MVP मींस मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। तो आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव क्रिएटेड दैट देन प्रोबेबली इट विल बी वेरी वेरी इजी टू सेल दैट, ओके। तो आप मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाओ और उसके ऊपर आप बिजनेस मॉडल्स लॉन्च करो, ठीक है। फिर एक होता है बहुत सिंपल, आप सबने सुना होगा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, कि आप कस्टमर से सब्सक्राइब करवा रहे हो उस स्पेसिफिक चीजों को। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है, जैसे कि बहुत सिंपल अगर मैं बोलूं, आजकल आप लोग सारे के सारे, वैसे नेटफ्लिक्स दो तरीके का बिजनेस मॉडल यूज कर रहा है। दे हैव इंटीग्रेटेड टू काइंड्स ऑफ बिजनेस मॉडल। आप सबने आई एम श्योर नेटफ्लिक्स सुना होगा, प्राइम वीडियो सुना होगा, हॉटस्टार सुना होगा, राइट। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं इनको। इन सब प्लेटफॉर्म्स ने ना अपने क्या बोलते हैं, दो मॉडल्स रखे हैं। एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, दूसरा फ्रीमियम मॉडल है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों इन मॉडल से जा सकते हो कि नहीं। फ्रीमियम मॉडल मतलब फ्री प्लस प्रीमियम। इट मीन्स उसके अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नेटफ्लिक्स, अगर आई एम श्योर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स यूज करा होगा सबने, एक बारी यस ना कुछ तो बोल दो यार। यस सर, थैंक यू दामिनी, यस फैल्कन, यस, ओके, गुड टू हियर दैट यू गाइस हैव यस यूज्ड यस, इट। ऑल्दो थैंक यू उतना मैम। टाइम नहीं मिलता बट यस। थैंक यू सो मच मैम। सो पता है ये बहुत फ्रीमियम मॉडल एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल एक बहुत चालू चीज है, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू एक्वायर दिस पीपल आउट देयर। और उसका रीजन बताता हूँ व्हाई। पहले ना वो आपको पूरी आदत लगा देंगे। सो फ्रीमियम मॉडल मींस वो पहले आपको फ्री में कहेंगे कि आप एक महीना ट्राई करके देखो, ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी मूवीज है, टीवी सीरीज है, एक्सक्लूसिव कुछ शोज हैं, ठीक है, जो सिर्फ हम बनाते हैं, आप वो एक बारी लेट्स ट्राई टू वॉच इट, ओके। आपका एक महीने का है, आपको बस क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालनी है, वो भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप बस वो एक महीने के लिए देखो, यू सी टू इट, एंड एवरीवन इज लाइक ठीक है देख लेते हैं, क्या है एक्सक्लूसिव क्यों है, देख लेते हैं। अच्छा जी, देखा, आज एक टीवी सीरीज शुरू करा यार, वो तो मतलब 5 सीजन तो उसी में ही है, अब
जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो हाउ मेनी यूथ आर देयर, बट अगर आप लोगों ने कभी वेम्पायर डायरीज देखा है तो उसके तो अकेले 6 सीजन्स है। अब 6 सीजन्स तो आप एक महीने में नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। हर सीजन में 15-20 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड इज फॉर 45 मिनट्स, तो ये तो गारंटी है कि नहीं हो सकता, ठीक है। गेम ऑफ थ्रोन्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखने बैठ जाओगे तो हो गया काम। तो इतने बड़े बड़े सीजन 40-45 मिनट्स का एक एक एपिसोड, तो नेटफ्लिक्स को पता है कि आप लोग ये पूरा तो खत्म कर नहीं पाओगे 1 मंथ के अंदर। अच्छा, आदत लगा दी। अब आप मान लो 6 सीजन में से 4th सीजन आपने खत्म कर दिया एक टीवी सीरीज के, 2 सीजन बचे हैं और उसके एटलीस्ट 12 एपिसोड्स बचे हैं, 24 एपिसोड्स बचे और आपको देखना एंडिंग क्या है। सो आप लोग नेक्स्ट मंथ ना उनको चार्ज कर दो, उनको पैसा दे दोगे, अपने पैसे डुबा दोगे। 500 रुपए गए महीने के, गए 500 रुपए, एंड यू विल डू दैट, ट्रस्ट मी यू विल डू दैट। व्हाई? बिकॉज वो आप में कीड़ा जग गया है कि यार ये तो चीज खत्म करके रखनी है, ये तो चीज देखनी ही देखनी है। सो दैट इज हाउ अ फ्रीमियम मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रीमियम मॉडल इज नॉट ओनली यूज्ड by Netflix or by Prime Video or by like the people OTT platforms जो अभी पिछले 2-3-4 सालों में चले हैं, उससे पहले भी फ्रीमियम मॉडल्स बहुत बिजनेसेस ने यूज करे। अगेन इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, ओला। अच्छा, ओला ने जब स्टार्ट करा ना, ओला ने बोला कि यार हम लोग ना कस्टमर अडाप्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओला के पास स्टार्टिंग से ही पैसा था, क्योंकि ओला ने स्टार्टिंग से ही काफी फंडिंग उठा ली थी, काफी फंडिंग उठा ली थी उन्होंने, ठीक है। जब वो दूसरी सिटीज में एक्सपैंड करना शुरू हुए, उन्होंने क्या करा था, मैं आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स यस्टरडे, और मैं उसको यही एक्सप्लेन कर रहा था कि ओला ने क्या करा था कि वो ड्राइवर को पूरे पैसे दे देता था, लेकिन वो 30-40% डिस्काउंट जो उसका अपना पैसा होता था, जो 30-40% मार्जिन रेट जो उसका अपना होता था, ठीक है, उस पे वो कहता है लोगों के डिस्काउंट, फ्री राइड्स, ऐसे बोल के फ्री राइड्स, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, लेकिन फ्री राइड्स है। या आपको अप टू 40%, 50%, 60%, 70%, 100% डिस्काउंट। वो खुद पूरा डूब जाएगा, कोई टेंशन नहीं ओला को, वो खुद पूरा डूब जाएगा। वो ड्राइवर के पैसे जरूर देगा ताकि उससे मोर एंड मोर ड्राइवर्स जुड़े, ठीक है, जो कि हम लोग उनको कह सकते हैं कि वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दे वर दी वेंडर्स, और वो ड्राइवर्स को अच्छा खासा पैसा दे रहे थे, ड्राइवर जरूर जुड़ेंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि यार चलो साथ में हमारे को मार्केट अगर बनानी है, तो मार्केट बनाने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या बोलते हैं, लोगों को पकड़े। लोगों को कैसे पकड़ेंगे जी? आ जाओ, फ्री राइड है, गेट अप टू 5 फ्री राइड्स पर मंथ, गेट अप टू 3 फ्री राइड्स पर मंथ, ठीक है। अगेन अब जाओ उनके मॉडल, उनके उस पर बैठो, ठीक है, और आप कहोगे यार मजा आ गया मेरे को, तो गाड़ी में बैठ के मैं आराम से इधर से उधर चला गया फ्री में। बस एक बारी फ्री की आदत लग गई, एक बारी उनकी सर्विसेज की आदत लग गई, उसके बाद आप कहोगे यार ये तो अच्छी चीज है। अच्छा, 4th टाइम ऑनवर्ड्स उन्होंने लगाना शुरू कर दिया 100 रुपए, 200 रुपए। अब आपको आदत तो लग गई है, अब 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो है ही है। ओला यूज करनी है, उबर यूज करनी है, फिर गए पैसे। सो दीज kind of business model, either the subscription based business model, either the freemium based business model, or either you are telling the customers कि आप लोग आ जाओ, पैसे की टेंशन ना लो, ठीक है, आप बस ये टेंशन लो कि हमारी आप क्वालिटी चेक करो। सारे यही लिटरली बता रहा हूँ, सारे ना ये वर्ड जरूर बोलेंगे अपने स्टार्टअप में, और आप भी बोलोगे कहीं ना कहीं जी हमारी क्वालिटी A1 है, हमारी क्वालिटी नंबर 1 है, चाहे क्वालिटी के नाम पे ना एकदम घटिया चीज बेच रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर इट हैपेंस, बट आपको अपने आप को तो प्रूव करना ना। यू कैन नॉट बी नेगेटिव अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज इनटू द मार्केट। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू टेल देम कि नहीं मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरी सर्विस बेस्ट है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब बाहर जाके बेच रहे हो तो आप लोगों को डिस्काउंट्स, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन, आप लोगों को फ्री, आप लोग को ये चीजें करनी आनी चाहिए ताकि आप मार्केट में देखो कि मार्केट में आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, ट्रस्ट मी गाइस, इट हैज इट्स ओन नेगेटिव इफेक्ट्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली इन्हीं बिजनेस मॉडल से अप्लाई करने के बाद चल नहीं पाए। अब प्रीमियम बिजनेस मॉडल बहुत ऐसे, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि प्रीमियम बेस्ड मॉडल उन्होंने स्टार्ट करा बट वो नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तो फ्री में दे रही थी चीजें, तो इसलिए लोग देख रहे थे, और उनका क्वालिटी नहीं था, उनका क्वालिटी नहीं था। उन्होंने 1 महीना फ्री में दे दी चीजें, लेकिन वो शायद लोगों ने 1 हफ्ता भी नहीं देखी होंगी, और उन्होंने बोल दिया कि अगले महीने से चार्ज है।
और अगले महीने से जब उन्होंने चार्ज करना शुरू करा, उन्होंने देखा कि यार हमारा तो ट्रैक्शन जो 100% में था वो 5% में आ गया। जो आज यूजर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे 1000 थे, वो अब कुछ बचे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने पैसा लगाना शुरू कर दिया, और पैसा लगाया तो मैंने शायद बहुत ही ज्यादा पैसा लगा लिया। ठीक है, सो बहुत सारे देर आर अदर OTT चैनल्स, जैसे अगर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम, ये अगर 500 रुपए या 600 रुपए ले रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स इज टेकिंग अराउंड मिनिमम इज अराउंड आई थिंक सो 500 रुपीज पर मंथ, राइट। प्राइम वीडियो इज अराउंड 200 समथिंग और 300 समथिंग, या पता नहीं, उनका मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कितना है पर मंथ और या पर ईयर का होता था उनका तो। ठीक है, हॉटस्टार ने डिज्नी के साथ कोलैबोरेट करा है, सो दे आर चार्जिंग 1500 रुपीज। ठीक है, सो एवरीवन इज चार्जिंग अ बिट हाई, लेकिन यहाँ पे ही उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, देयर इज ऑल्ट बालाजी, देयर इज Z5, ठीक है, वो लोग 100 रुपए में भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको मार्केट बनानी है, उनको पता ही शायद 100 रुपए तो कस्टमर एडजस्ट कर ही लेगा। ठीक है, सो आपको अपनी कंपटीशन को बहुत नीटली, जो मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि मार्केट रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है। सो इसके अंदर ही मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी बिजनेस मॉडल चूज करो, सो देयर आर एन नंबर ऑफ बिजनेस मॉडल, यू बिकम द मिडल मैन, यू बिकम अ मार्केट प्लेस, यू बिकम अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, यू बिकम अ प्रीमियम मॉडल। ठीक है, आप कोई भी मॉडल अपनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा अगर आप उसकी कंपटीशन, आप जो आप कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनकी एनालाइज नहीं करोगे कि वो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, कहाँ पे वो वीक जा रहे हैं। सो इसमें अगेन एक चीज आती है स्वॉट एनालिसिस। आई एम श्योर आप लोगों ने, अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट्स या अकाउंट स्टूडेंट्स या MBA स्टूडेंट्स हो या इवन BBA स्टूडेंट्स हो, आप लोगों ने ये सुना होगा स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। कि स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्टार्टअप की स्ट्रेंथ क्या है, क्या डिफरेंट है। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप अपने स्टार्टअप में 4 चीजें या वन ऑफ दीज 4 थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड वन ऑफ दीज 4 थिंग्स और आइदर ऑल ऑफ दीज 4 थिंग्स। दैट इज, या तो इनोवेशन होनी चाहिए, या एक टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूसेज होना चाहिए, राइट। या तो आप डिसरप्ट करना चाहते हो, डिसरप्ट मतलब बहुत तगड़ी मार्केट को हिला रहे हो, ठीक है, और बहुत यूनिक आइडिया है। आइदर द फोर्थ वन है स्केलेबिलिटी, आप स्केल बहुत जल्दी कर रहे हो। तो अगर ये 4 चीजों में से आपने कोई एक इंप्लीमेंट करते हो, या आप चारों की चारों इंप्लीमेंट करते हो, राइट। सो अगेन व्हाट यू कैन डू इज, इन चारों में से आप उठा के देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाइक करती है, तो उस स्ट्रेंथ्स के एटलीस्ट 2-3 पॉइंटर्स नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर यही पे आप लिखने जाओ कि वीकनेस कहाँ है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कहते हो कि यार मेरे को ना, अब जैसे मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम आइदर फ्रॉम जम्मू और मोस्टली फ्रॉम कश्मीर, यही 2 रीजन से आप लोग हो गए, अगर हो गए तो अभी। ठीक है, अगर आप इन 2 रीजन से हो तो आप लोगों को पता है कि यार ओला और उबर बहुत कम मिलती है। मतलब मेरे को अब नहीं पता कि अभी ओला और उबर है, 2018-19 में तो नहीं थी जब मैं आया था। ठीक है, तो ओला और उबर कम है, आप बोलते हो कि यार हम लोग ना ओला और उबर जैसी एक टैक्सी सर्विसेज खोल लेते हैं। नो डाउट वो JNK रीजन में चलेगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या वो JNK से बाहर चलेगी? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपको वो स्केलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स है, स्विगी जोमेटो है, शायद वो हमारे को डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग दिल्ली में गए तो 5 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, आप लोग कहोगे ग्रॉफर्स करके एक एप्लीकेशन है जहाँ से हम लोग खाना वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह इजीली मंगवा सकते हैं, वहाँ से हम लोग वो जम्मू रीजन में नहीं है, ठीक है, तो हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड, यू स्टार्ट दैट। ठीक है, अच्छा है, आप अपनी सिटी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ कर रहे हो, दैट्स गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू स्केल अप, राइट। यू वांट टू बिकम लाइक अ यूनिकॉर्न, राइट। आपको यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन कंपनी बनना है। वो कैसे बनोगे? जब तक स्केल नहीं करोगे, एक रीजन से आप नहीं रह सकते। So that is, these are very very important thing you need to understand. Okay, so these are there. Thank you रुपेश for telling me कि ओला उबर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम है आप लोगों के वहां पे, लेकिन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप बनाते हो तो आप एक जगह पे लिमिटेड रह जाओगे। यस, यू वांट टू स्केल। अगर आपको ओला और उबर जैसी सर्विसेज को करना है, टक्कर देना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक इनोवेटिव चीज लेके आनी पड़ेगी उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो चीज एक लेकर आओ जिससे आप थोड़ा यूनिक बनो और आप लोगों को बता सको कि हाँ हम लोग डिफरेंट है मार्केट में।
अब कैसे आप ला सकते हो ओला उबर में, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कैसे एक ऑलरेडी दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट पकड़ी हुई है, एंड बहुत सारे कैब्स वालों ने आके ट्राई करने की कोशिश करी, बट वो नहीं नहीं कर पाए, ओला और उबर की मार्केट नहीं हिला पाए। ठीक है, यस एब्सोल्युटली, जुगनू ने ट्राई करा, जुगनू भी चला, थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने ऑटोज वगैरह चंडीगढ़ लेवल पे, बट अगेन रुपेश, इफ यू नो अबाउट जुगनू, तो जुगनू भी कुछ रीजन्स में ही स्पेसिफिक रह गया, ऑल ओवर इंडिया स्केल नहीं कर पाया। सो अगेन दैट इज अगेन द थिंग जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि स्केलेबिलिटी इज अ मस्ट। तो स्केल अगर आपको करना है, एक बहुत बड़ी कंपनी बननी है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रही हूँ, तो वो एक बार देखना पड़ेगा कि वेदर दैट सोल्यूशन कैन ग्रो इन द फ्यूचर और नॉट। इफ यू कैन नॉट ग्रो दैट सोल्यूशन, इट्स ओके, बट आप ऐसा एक बिजनेस मॉडल बनाओ कि जिससे वो स्केल कर सके। अब वो बिजनेस मॉडल आप कुछ भी बना सकते हो, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल यू आर क्रिएटिंग। बट उसके मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए, यू कैन क्रिएट बहुत बिजनेस मॉडल में बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, मिडिल मैन है, मार्केट प्लेस है, इसमें कस्टमाइज का भी ऑप्शन आता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते रहते हो बिजनेस मॉडल को। लास्ट टाइम भी मैंने एक एग्जांपल दिया था पेटीएम में, वो अपने बिजनेस मॉडल को ऑलमोस्ट चेंज करता रहता है, तो आप भी कैसे अपने बिजनेस मॉडल को ट्वीक करते हो। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Right, Rupesh, again, tier 3 cities, Jugnu is better. I can understand Jugnu is better, but again, it's limited to only tier 3 cities, right? दो tier 3 cities का count ज़्यादा है इंडिया में as compared to tier 1, tier 2 cities. But tier 3 cities भी सारी tier 3 cities को नहीं पकड़ा है जुगनू ने. So that's the whole point I'm making कि why Jugnu is lacking to scale, और why I'm sure out of 34 people शायद 50% लोगों को नहीं पता होगा जुगनू के बारे में. So why it is lacking, why it didn't capture the market, it's just because at the end of the day वो उन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं बना पाए जहाँ पे वो स्केल कर पाए, या अगर वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको बहुत टाइम लग रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है, सो दैट इज माई रिक्वेस्ट कि जब भी आप लोग एक बिजनेस मॉडल बनाते हो, उसको आप ये देखो कि कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है. ठीक है, अब कस्टमर में भी अगेन बहुत चीज़ें होती है, कस्टमर को पहुंचाने के लिए आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग में इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग होती है. ठीक है, थ्रू द लाइन मार्केटिंग होती है. अगेन ये मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको पता होगा ये टर्म्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप लोग बहुत तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो. आप लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स चला सकते हो, ऑफलाइन आप इवेंट्स में जा सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो बाहर जगह जगह, बहुत चीज़ें अगेन ऑफलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में. बट आप लोगों को अगर ये चीज़ें करनी है, आप लोगों को एक कस्टमर तक जाना है, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मैं कितनी जल्दी स्केल कर सकता हूँ. और आपको अगर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड वो चीज़ पहुंचानी है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन का ही प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा. तो ऑनलाइन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि वो जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक टेक्नोलॉजी से कोई बहुत फैंसी प्रोडक्ट बना रहे हो. नॉट एट ऑल नेसेसरी कि यू आर बिल्डिंग अ वेरी अमेजिंग रोबोट, नथिंग लाइक इट. आप एक नॉर्मल वेबसाइट का यूसेज करते हो, ठीक है, वो भी एक टेक्नोलॉजी का ही यूसेज है, बट अगेन आप उससे स्केल कैसे कर रहे हो, दैट डिपेंड्स. सो प्लीज, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग योर आइडिया, और वेन एवर यू हैव क्रिएटेड अ स्टार्टअप, तो उसका बिजनेस मॉडल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या okay, Rupesh, thank you. Well, if I want to do a business not to scale at large but some specific niche and to generate employment in local area, would like later talk. So Rupesh, what you just told, उसको हम लोग, अगर आपको लोगों को इम्पैक्ट करना है, तो यू क्रिएट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यू क्रिएट एन एनजीओ. ठीक है, क्योंकि अगर स्केल करना है तो कहीं ना कहीं आप में बिजनेसमैन का कीड़ा जग जाएगा, तो आपको स्केलिंग तो करनी पड़ेगी, फिर आपको बिजनेस मॉडल पे ट्वीक करना पड़ेगा, राइट. सो अगर आपको लोगों, हाँ, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो आप एक एनजीओ बनाओ. ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट लो, प्राइवेट प्लेयर्स के बहुत सारे CSR इनिशिएटिव्स चलते हैं, आप वो लो. ठीक है, अगेन एक एनजीओ का भी अपना बिजनेस मॉडल होता है. कभी आप ये मत सोचना कि एनजीओ का बिजनेस मॉडल नहीं होता. एनजीओ प्रॉफिट नहीं कमाती है, लेकिन एनजीओ भी पैसा कमा सकती है. ठीक है, वो पैसा कमा के वो आगे किसी अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए यूज करती है. So again, if you want to do that, so that is very very important. Falcon International, sir, I think my business model is innovative. Just wanted to cross check with you. Will connect you on this separately if you permit. Yes, Falcon, anytime. That would be great help.
Flying school for paragliding in Jammu region is my idea. Definitely Rupesh, आप flying school for paragliding आप जम्मू region में आपको लगता है कि there can be a good so I love to do paragliding और मैं paragliding में एक हिमाचल प्रदेश करके एक रीजन है जहाँ पे बीर बिलिंग करके विच इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट जहाँ मतलब हाईएस्ट वो फीट रह चुका है, तो बीर बिलिंग में जाके मैं पैराग्लाइडिंग करके आया था, तो आई कैन अंडरस्टैंड पैराग्लाइडिंग इज अ वेरी गुड स्पोर्ट और उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो, मार्केट को भी अच्छा लगेगा, यूथ हो एल्डर हो एवरीवन कैन डू इट और सेफ्टी मेजर्स के साथ, बट अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द बिजनेस मॉडल अगेन कि इसमें कौन आएंगे, कहाँ से लोग लाओगे, कितने ट्रेनर्स लाओगे, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है, उड़ने में बहुत सारे लोगों को फोबियाज होते हैं, सो यू नीड टू अगेन ट्वीक ऑन योर बिजनेस मॉडल. Rupesh, that's good that you are an honorary member of Himachal Paragliding Association. That's really great to hear. But आपको फिर आपको अगर करना है तो Rupesh, I'll say I'm not sure if you are from Jammu or not, but if you are not, yeah, even if you are, then probably first I would say कि आप अपना pilot project हिमाचल में एक बारी setup करो, and then probably think about Jammu or Kashmir. Nilesh Singh, is social media marketing effective in India? Nilesh, social media marketing is the best form of marketing on nowadays, frankly, क्योंकि आपके पास और कोई मार्केटिंग का जरिया ही नहीं है. अगर आप देखोगे तो सोशल आप कितना दिन में कम से कम 4 to 5 hours मिनिमम, आई एम सेइंग 4 to 5 hours यू आर ऑन फोन, एंड शायद अभी लॉकडाउन के चलते या बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन आई थिंक सो दैट आवर्स गोज लाइक 7 to 8 hours, 7 to 9 hours, ठीक है, पर डे आप फोन पे होते हो. आप वो चाहे सोशल इंस्टाग्राम अपने, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम में देखना, उसमें वो दिखाता है व्यू एक्टिविटी कि आप पूरे दिन में इंस्टाग्राम आपने कितनी बारी खोला. इवन फेसबुक पे ये डेटा एनालिटिक्स दिखाता है, तो आप देखना आपको समझ में आ जाएगा कि आप आधे घंटा या 2 घंटे तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही दिखा रहे हो, राइट. सो अगेन दीज थिंग्स आर वेरी वेरी यू नो, आप देखो, और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे आप कितने, फेसबुक पे आप कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, कितने सारे स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं. सो दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग. So social media marketing is again very very important, right? So please you need to understand that. Any other question guys related to business model? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं है तो this is very important, please understand. मतलब scale up your startup जो मेरा आज टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा importance हम लोग देखेंगे, right? And प्लीज़ जब भी आप लोगों को कनेक्ट करना है, अगेन मैंने आप सबको लास्ट टाइम नंबर दिया था, अगर अभी अभी आपको चाहिए यू कैन टेक माई नंबर, यू कैन टेक माई ईमेल आईडी, यू कैन कनेक्ट मी विद ऑफलाइन, एंड देन आई हैव मेंशन्ड बिफोर एज वेल कि आई वुड रियली लाइक टू थैंक SM Video TBIC. तो आप लोगों को स्केल अप करना है, आप लोगों को अपना आइडिया वैलिडेट करना है, मार्केट वैलिडेशन करनी है, सो अगेन यू कैन गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. डॉक्टर स्वारकर सर है, स्वाति मैम है, यू कैन प्लीज़ टॉक टू देम, ठीक है, कि आपको अपने रीजन से एसोसिएटेड कुछ भी चीज़ करनी है, एंड ऑब्वियसली आई एम एसोसिएटेड विद देम एज वेल एज अ मेंटर, तो यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम. मे बी मैं एक इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करूँ, बट आई प्रॉमिस अगर आपने दोपहर को मैसेज कर रखा है तो शाम या रात को मेरा रिप्लाई आपको पक्का आएगा ही आएगा, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That business plan and lean canvas, yeah. So let's move. Okay sir, thank you so much sir for telling me ki business model and all. So Siddharth Shukla, okay, Rupesh, that's great to hear that you are being associated with 25 years, Rupesh Mason. It's actually a pleasure to meet you and honor to meet you as well. Vivek, can we focus our financial metric based on the 10% competitors numbers? Vivek, can you just tell me a bit more about it? Exactly what do you want to tell about financial metric on the 10% competitors? Like ये 10% कहाँ से आया number? So if you can just tell me a bit about more in detail on the chat. Falcon, my question is, please throw some light on collaboration with government agencies, how it can be materialized. So Falcon International, and to the people out there, again it's very very important कि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हो अपना स्टार्टअप, सो आप सारे के सारे गवर्नमेंट एजेंसीज, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट्स अ स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग सारे के सारे एजेंसीज में जाओ और अपना क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट उनसे करने की कोशिश करो. आई नो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई नो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसेस कभी कभार या तो बहुत स्लो होता है
ठीक है, या कभी कभार डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कहते हो यार इतनी मेहनत कौन करेगा, बट दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी अगेन, गवर्नमेंट को ब्लेम हर कोई करना चाहता है कि यार उन्होंने ये चीज अच्छी नहीं करी, उन्होंने वो चीज नहीं अच्छी करी। प्रोबेबली आई विल से वन थिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि व्हेन यू वर्क विद गवर्नमेंट ना, आप फिर किसी के साथ भी काम कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट जो वो इतने पेपर वर्क मांग लेती है जो आपको आगे जाके पेपर वर्क बनाने पड़ते ही पड़ते हैं, या आपको पेपर वर्क किसी को देना ही पड़ता है। सो एज अ स्टार्टअप, right, when you are there and you want to start a startup or you have already started a startup, right, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है और डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन गो टू startupindia.gov, राइट, startupindia.gov.in, उसके अंदर आप जा सकते हो, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो एज अ स्टार्टअप। ऑब्वियसली दे टेक अराउंड आई थिंक सो मैक्सिमम ऑफ 2 weeks ऑफ टाइम। आपका स्टार्टअप अगर उनको सही लगेगा, जो भी आपने पेपर वर्क और अपनी डिटेल्स डाली, अगर उनको अच्छा लगेगा, सो दे प्रोवाइड यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, राइट, DPIIT की, तो आप लोग जा सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा DPIIT अप्रूव्ड स्टार्टअप। तो एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो गए। सेकेंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट इज अगेन ऑन अ डिफरेंट लेवल। आपको GST में आपको बेनिफिट होते हैं, आपको थोड़ा ग्लोबल मार्केट ऑप्टिमाइजेशन दे देते हैं, आपको कभी उनके ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं कहीं पे, तो वो अपना बूथ लगाते हैं, आपको वहाँ पे बुलाते हैं। सो देर आर n number of facilities which you give. Again, it takes time, it requires a lot of patience to deal with the governments, but it is important as well कि आप लोग ये चीज़ें करो। तो स्टार्टअप इंडिया में जाओ, JNK रीजन से हो तो आप लोग स्टार्टअप JK लिखोगे तो स्टार्टअप JK की एक वेबसाइट है वो खुलेगी, वहाँ पे आप अप्लाई करो। अगेन मेरे ख्याल से डॉक्टर स्वारकर सर वुड बी एबल टू टेल यू मोर कि आप लोग कैसे, बट स्टार्टअप JK की भी एक स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी थी, राइट। अब आई डोंट नो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू UT क्या उसका पड़ा है इम्पैक्ट वहाँ पे, बट येस, स्टार्टअप JK की भी एक पॉलिसी थी आज से लाइक 6-7 months बैक, जहाँ पे वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते थे, इंसेंटिव्स मिलते थे, 10,000 रुपीज पर मंथ मिलता था हर स्टार्टअप को। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप लोग स्टार्टअप JK में जाओ, अपना आइडिया वहाँ पे आप अपना आइडिया रजिस्टर कराओ, राइट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या वहाँ पे पूरा इंसेंटिव्स, पूरा एक स्कीम बनी होती है, ठीक है। तो आप पूरी स्कीम में जाओ कि उसमें इंसेंटिव्स क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्या एलिजिबिलिटी है, आप देखो कि उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते। सो अगर आप किसी और स्टेट से हो तो देर आर मोर देन 23 स्टेट्स हु आर डायरेक्टली लिंक विद स्टार्टअप इंडिया, राइट। तो आप स्टार्टअप इंडिया में तो रजिस्टर करो ही करो, बट अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसका भी वहाँ पे, आपको बहुत सिंपल मैं तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आप मान लो उत्तर प्रदेश के हो, तो आप डालोगे स्टार्टअप UP गवर्नमेंट, जस्ट गूगल पे इतना डालो, फर्स्ट लिंक खुल जाएगा स्टार्टअप UP का, ठीक है। आप मान लो आप पंजाब के हो तो लिख दो स्टार्टअप पंजाब स्टेट पॉलिसी, स्टार्टअप पंजाब का फर्स्ट लिंक खुल जाएगा, ठीक है। आप स्टार्टअप हिमाचल के हो तो स्टार्टअप हिमाचल डाल दो। तो आप कोई भी ऐसी चीजें डालोगे ना गूगल पे, स्टार्टअप साथ में स्टेट का नेम और गवर्नमेंट पॉलिसी, तो आपकी वो सबसे पहले गूगल पे पॉलिसी खुल जाएगी, ठीक है। और उस पर जाके देख लो कि आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं है, अगर है क्या पेपर वर्क है, पेपर वर्क डाल दो ऑनलाइन। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऑनलाइन ही करती हैं, आपको फिजिकली इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। So you go there, apply there, and you will get, definitely you will get few of the benefits, whether it's incentives with or whether it's anything else. Then the third thing is एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया स्टार्टअप इंडिया, सेकंड हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ, थर्ड आपका कोलैबोरेशन होता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो MSME के अंदर, तो आप MSME डालोगे, आप MSME वेबसाइट फॉर स्टार्टअप्स, सबसे पहले MSME की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे आप जाओ, अपना आइडिया रजिस्टर करो या अपना स्टेट के स्टार्टअप के बारे में रजिस्टर करो, डिटेल्स दो, ठीक है। अगेन यू विल गेट फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। सो अगेन दीज आर दी थिंग्स। फैल्कन, कैन यू जस्ट टेल मी, वेटिंग फॉर रिकॉग्निशन कितना टाइम हो गया आपको? Like when did you actually applied for it, Falcon, if you can tell me? So probably I have few very good links in more than 10 days, so wait another for 5 days. If not, then probably you can let me know. So I have very dear friends in Startup India team, so I will help you with that अगर नहीं आता है तो आपका DPIIT certificate, but I think so within next 5 days आपके पास आ जाएगा, so don't worry about it, right? So आप लोग सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सबसे बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट बीइंग लिटिल स्मार्ट, लिटिल प्रोएक्टिव, लिटिल अंडरस्टैंडिंग
कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं. Although I am recognized as innovative startup under JK startup policy, that's actually good to hear, Falcon. And I hope कि आप लोगों को कुछ benefits मिल रहे हो. नहीं मिल रहे तो patience रखो, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे. पेशेंस रखने वाली बात है. प्लीज आप लोग गवर्नमेंट से ये मत एक्सपेक्ट करना कि आज मैंने चीज डाली और कल मुझे फंडिंग मिल जाएगी. इट नेवर हैपेंस लाइक दैट. ओके, सो गवर्नमेंट नेवर फंड्स यू, गवर्नमेंट गिव्स यू ग्रांट्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फंडिंग और ग्रांट्स में बहुत फर्क है. ठीक है, और जब वो आपको ग्रांट्स देती है तो टाइम लगा के देती है, आपको चीजें लगा के देखती है, आपको पूरा समझती है. नहीं समझेंगी तो पूरा आपका डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक कर लेंगी. सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट yes, government works effectively and slow, but their work is really really good. ठीक है, and trust me, मैंने 4-5 साल गवर्नमेंट में बिताया, तो I can absolutely tell you with my experience कि हाँ, like that is very very important. Indirectly, directly, I have been associated with many state and central government policies. तो प्लीज आप लोग जरूर, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं सभी स्टार्टअप्स को बोल रहा हूँ. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू आइडिएशन बेस्ड स्टार्टअप्स, इट इज लिमिटेड टू एवरी स्टार्टअप. वेदर आप बहुत सारा पैसे, मतलब इवन इफ यू आर अर्निंग पर मंथ, देन ऑल्सो यू गो अहेड, राइट. अपना रजिस्टर कराओ आप अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, and trust me, you will get eventually. Okay, it might take some time. That's the whole story. Right guys, anything else would like to ask me or tell me? क्योंकि इसके बाद जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, I'm sure it is going to help you. ठीक है, so whether it's a central government, whether it's a state government, whether it's a venture capitalist firm, whether it's an angel investor, whether it's an incubation center, whether it's an accelerator, एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, भाविक थैंक यू सो मच, मैं इसी पे ही आ रहा था. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है, और मेरे को लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था, तो बहुत अब मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उसके ऊपर. दैट इज योर पिचिंग. हाउ यू पिच योर आइडिया और योर व्हाट इज योर पिच डेक शुड कंटेन. ठीक है, कहते हैं ना कि यार, अब मेरे को स्टार्टअप बोलता है या कोई भी मेरे से ना बात करता है, मैं उसको सबसे पहले बोलता हूँ कि यार मुझे एक बार ना एक डॉक्यूमेंट बना दो. अगर आप आइडिएशन स्टेज पे हो, अगर आप आइडिएशन स्टेज पे नहीं हो, सो यू सेंड मी अ पिच डेक, अ प्रेजेंटेशन, जो सारे के सारे आपको बोलेंगे. किसी के पास भी आप अपना आइडिया लेके जाओगे ना, तो बोलेंगे यार प्रेजेंटेशन भेज दो, तो प्रोबेबली वील टॉक. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक प्रेजेंटेशन कैसे लुक होनी चाहिए और क्यों, स्केलिंग अप में दिस विल हेल्प यू. सो दैट इज, मैं आपको बताया तो प्रेजेंटेशन आपको कैसे बनानी चाहिए. सो द फर्स्ट प्रेजेंटेशन पॉइंटर शुड बी, बहुत ये प्रेजेंटेशन की आप स्लाइड्स अगर आपने नोट डाउन करनी है, यू कैन नोट इट डाउन. द फर्स्ट स्लाइड शुड बी द नेम ऑफ योर स्टार्टअप, ऑब्वियस रीजंस. ठीक है, जो नेम ऑफ द स्टार्टअप, और उसके नीचे ना एक छोटी सी टैगलाइन, 4 to 5 वर्ड्स की एक छोटी सी टैगलाइन, कि आप लोग ये मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब व्हाट एवर योर स्टार्टअप इज, स्टार्टअप का नेम और उसके नीचे छोटी सी टैगलाइन. अगेन टैगलाइन इज वेरी वेरी इफेक्टिव. ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल आप बनाओगे. और कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड ले लो, हर ब्रांड की एक अपनी टैगलाइन होती है. LG की देख लो, लाइफ्स गुड, राइट. तो हर उसने एक टैगलाइन बना रखी है, तो आपको भी एक टैगलाइन बनानी पड़ेगी आज नहीं तो कल. तो क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग से ही वो एक टैगलाइन बना के, ताकि हम उसको ब्रांड बना दें, राइट. सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The second slide of your presentation would be the problem. तो आप उसमें लिखोगे कि प्रॉब्लम क्या है. जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉब्लम के बारे में आपको थोड़ा बताना होता है, तो आप सबसे पहले देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी मार्केट है. उसके बारे में हाफ पेज लिख दो आप, कि ये एक प्रॉब्लम सेक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो आप उसके बारे में पूरा प्रॉब्लम रख दो, उसमें आप मार्केट एनालिसिस डाल दो, उसमें आप चीज़ें डाल दो, एंड प्रोबेबली वो प्रॉब्लम डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, आइडिया, कि आपका आइडिया क्या है. हाफ पेज या 1 पेज ले लो प्रॉब्लम का. ठीक है, और उस सेक्टर का कि वो देखो 2 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम आपको डालनी पड़ेगी. एक प्रॉब्लम होती है जो आपने देखी और आप उसके बारे में लिख रहे हो. एक प्रॉब्लम होती है कि वो जो आपने प्रॉब्लम देखी है वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कितना बड़ा वो लॉस कर रही है. ठीक है, कहते हैं ना कि गार्बेज, टन्स एंड टन्स ऑफ गार्बेज है,
और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं, राइट। तो वो आप चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है, डेटा पे। तो वो पूरा का पूरा एक पूरी मार्केट का डेटा डाल दो कि कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है, और आपके यहाँ पे कितना बड़ा वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सो पर्सनल, योर पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस दी ओवरऑल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम की फर्स्ट उसमें आना चाहिए प्रेजेंटेशन में। द सेकेंड presentation, the third slide of the presentation would be your idea, कि आपका आइडिया क्या है। अब अगेन यहाँ पे भी आप बाइफर्केट कर सकते हो कि योर आइडिया इज बेसिकली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय व्हाट आर द मीन्स, ठीक है। तो वो मीन्स आप लिख सकते हो, ठीक है। सो वो आइडिया, देन आइडिया के कुछ स्टेप्स कि हाँ मैं ये ऐसे ऐसे करूँगी। आइडिया का एक बहुत सिंपल मैं बताता हूँ और बहुत इफेक्टिव चीज़ है कि आप साइकिल बना दो आइडिया का, ठीक है, कि सबसे पहले आप ये करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ऐसे अपने आइडिएशन सर्कल बना दो कि हम लोग ये स्टेप करेंगे एंड इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम दिस वे, राइट। जो आपने प्रॉब्लम फर्स्ट उसमें वेरीफाई करें। सो द प्रॉब्लम देन द आइडिया। फोर्थ स्लाइड would be basically why this idea is important और how it is validated, या मार्केट सर्वे क्या कहता है। तो वो फोर्थ स्लाइड आप किसी भी नाम से डाल सकते हो, चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम वैलिडेशन और आइडिया वैलिडेशन की जब आप करोगे चीजें तो वो उस पे डालोगे स्लाइड पे, ठीक है। नंबर्स विद द डेटा कि आपने किससे कितने लोगों से पूछा और वो कौन से लोग थे, उसका पूरा एक पाई चार्ट या पूरी एक मार्केट एनालिसिस करके आप उसमें डाल दो, राइट। देन द फिफ्थ स्लाइड वुड बी अबाउट योर बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल में क्या होएगा कि उसके अंदर आप बता रहे हो कि आपके सबसे पहले, ठीक है, या तो आप उसमें सीधा सीधा स्वॉट एनालिसिस डाल दो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, या आप उसमें डाल दो कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, जैसे फ्रीमियम बेस्ड है, ठीक है, या आपकी कैसे कौन से मार्केट में आपके वेंडर्स हैं, ठीक है, आपके प्रोड्यूसर्स कौन हैं, क्या बोलते हैं आप, बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है, इनके बारे में आप थोड़ा डिटेलिंग डालो। सिंपल है, आप पैसा कैसे कमा रहे हो, बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ, आप वो अपने बिजनेस मॉडल 1 से 2 स्लाइड्स का डाल दो कि आप पैसा कैसे कमा रहे हो। सिंपल है, उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ठीक है, किससे आप क्या ले रहे हो, कैसे बेच रहे हो, आगे क्या सर्विस दे रहे हो, वो कितना पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है। 1 to 2 slides of that thing is very very important, ठीक है। दैट इज ये आपकी कुछ 6 से 7 स्लाइड्स बन गई। 8th स्लाइड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस विच यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, राइट। कि आप कह रहे हो कि आज मैं एस्टिमेट लगाता हूँ। अच्छा, कभी भी ये नहीं, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइज, इफ यू आर डूइंग इट प्लीज रिमूव इट, प्लीज रिमूव इट। आप लोग ना दिखाते हो कि यार वर्ल्ड की मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है मान लो 3.9 बिलियन डॉलर्स की, मैं 3.9 बिलियन डॉलर्स की ना मार्केट एक्वायर कर सकता हूँ। अरे आपको लगता है आप कर सकते हो? ऑन अ सीरियस नोट, इट डजंट हैपन लाइक दिस। आप कहोगे उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, बहुत चीजें हैं, तो आप ये मत बोलो 3.9 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। आप सिंपल बोलो कि देयर इज अ ह्यूज मार्केट क्या, क्योंकि आप जब एक फिगर बोल दोगे ना, इन्वेस्टर आपसे सीधा पूछेगा। लिटरली आई वर्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट फर्म और मुझे पता है इन्वेस्टर्स कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दे विल लिटरली आस्क यू कि अगर तू मुझे गारंटी देता है कि 3.9 बिलियन डॉलर तेरी फॉर्म में, मेरे से ये ले 4 करोड़ रुपए और पैसा लगा, और मुझे क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, तू मेरे को 1 साल में पैसे दे, रिटर्न दे। एंड लिटरली दे आस्क लाइक दिस। सो गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टर्स के सामने नंबर्स और अपने पिच डेक में जो नंबर्स लिख रहे हो, ठीक है, वो लिखो, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं और इन्वेस्टर का काम ही यही होता है कि वो नंबर्स के ऊपर खेलता है, उसको और कुछ नहीं आता, वो सीधा नंबर्स के ऊपर खेलते हैं कि आपने अपने पिच डेक में क्या लिखा है, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने थोड़ा पिच डेक देख लो, ध्यान से नंबर्स देख लो। सो जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखो अगेन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैन बी रिटन इन 2 ways। 1 way कि आपने वो मार्केट वैलिडेट करने के बाद आपने बेचना शुरू करा और आपने 1 साल बेचा और आपको लगा कि 1 साल में मैंने इतना एक्स अमाउंट कमा लिया, राइट। एंड आफ्टर दैट एक्स अमाउंट कमाने के बाद मेरे को लगता है कि अगले 5 years में मैं 10 times ग्रो कर दूंगा बेसिस ऑन माई ग्रोथ इन द लास्ट 1 year। एक तो ये तरीका हो गया फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का। एक तरीका ये हो गया कि आपने जब वैलिडेशन करी, आप कहते हो कि यार मेरा प्रोडक्ट ना लोग लेने के लिए रेडी थे 100 रुपए में, ठीक है, आज के टाइम पे,
और उन्होंने बोला कि वो 100 रुपये देंगे और मेरे पास रिटर्न में वो चीज़। ठीक है, प्लीज़ अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो देखो, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड ही है। उसमें मैं इनिशियली बता रहा था कि क्यों वैलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू हाउ दैट वैलिडेशन विल कम इनटू योर पिक्चर एंड हाउ विल यू एबल टू ग्रो योर स्टार्टअप राइट नाउ। क्योंकि आप आज वो करोगे कि आपने वैलिडेशन वगैरह सब कर लिया, आपने वो नंबर्स वगैरह सब रख लिए, और वो नंबर्स को आप कैसे आगे एक्सपैंड कर रहे हो। ठीक है, वेन एवर यू गो टू इन्वेस्टर एंड इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जहाँ से आपको ग्रांट्स निकलवाने, तो आप कहीं से भी पैसे निकलवाओगे, इवन गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो आपको उनको नंबर्स दिखाने पड़ेंगे राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज अगेन वेरी वेरी स्मार्ट। गवर्नमेंट क्यों आपको ग्रांट्स देती है? वो ग्रांट्स आपको इसलिए देती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना स्टार्टअप उस स्पेसिफिक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में खोलोगे राइट, ठीक है, तो आप जो अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में खोल रहे हो, जैसे किसी स्टेट में खोल रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, आप लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को रखोगे, स्टेट गवर्नमेंट को अलग टैक्स दोगे, तो उनका तो पैसा ऐसे ही बनेगा। सो अगेन नंबर्स, everyone indirectly directly will revolve around these numbers. So please अपने numbers, financial projections जो भी है बहुत ध्यान से रखना। ओवरऑल मार्केट साइज कभी मत डालना, बट हाँ ये जरूर डालना कि देयर इज अ ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर। बहुत सारे क्वेश्चन, आई नो ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मेरे को बहुत लोग आगे पूछते हैं कि आप ये ह्यूज क्यों बोल रहे हो, ह्यूज तो कुछ भी नंबर हो सकता है। आई नो ह्यूज कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर मैं वो एक एस्टिमेटेड नंबर डाल दूं कि 4 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं वो अचीव कर सकता हूँ? अगेन दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप यूज करके छोड़ दो, इतना ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। हाँ ये इतना जरूर बता देना कि आपके रीजन में, जिस आप रीजन में स्टार्ट कर रहे हो या जिस भी नेक्स्ट सिटी में, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो आप ये जरूर बता सकते हो कि जैसे मैंने मार्केट की कैप्चर करने के लिए मैंने मार्केट वैलिडेशन करा। जैसे आज मैंने जम्मू रीजन में एक ऑफिस खोला हुआ है और मैंने जम्मू रीजन में पिछले 2 साल में बहुत अच्छा काम कर लिया है और मैंने एक मार्केट एक्वायर कर लिया राइट। अब मैं जम्मू से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब मेरे को दिल्ली में करना है, दिल्ली में इतनी बड़ी मार्केट है, वहां पे आप नंबर जरूर दिखा सकते हो। ठीक है, वहां पे आप बोल सकते हो कि इतने लोग हैं जो कि मेरा मार्केट आइडिया बाय करने के लिए बैठे हैं, कि वहां पे मेरे को पता है कि 2 करोड़ लोग हैं जो ये मार्केट में बाय कर लेंगे, और 2 करोड़ में से मैं ऑलरेडी 200 लोगों से बात करके आ चुका हूँ, और 200 में से वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जिन्होंने बोला है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू ओपन इट इन दिल्ली, नॉट इन तमिलनाडु। अगेन इन्वेस्टर विल आस्क यू कि वाई आप अपना ऑफिस दिल्ली में क्यों खोल रहे हो, ठीक है, तमिलनाडु में क्यों नहीं खोल रहे, केरला में क्यों नहीं खोल रहे? तो अगेन इट कम्स टू योर नंबर्स, इट कम्स टू योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। ठीक है, कि आप लोग कैसे फाइनेंशियल्स डाल रहे हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस राइट। ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, एब्सोल्युटली विवेक, कि all the future projections will be based on the market size and your growth rate. So again, these things are very very important. And Hemender Singh, if our idea is totally new, how can we tell about competitors in presentation? Okay, if your idea is new, very new, तो मार्केट रिसर्च तो आप करोगे ही राइट। आप गूगल पे रिसर्च करो और देखो, अपने आइडिया के बारे में लिखो राइट, कि कैसे चीज़ें करती हैं। Sahil, I'll come to your point, but before I'll just answer Hemender Singh that competitors को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। सिंपल है, गूगल पे आप अपना ही स्टार्टअप का आइडिया डाल के देखो और उसमें साथ में इन इंडिया लगा दो या इन जम्मू लगा दो या इन जहाँ पे के भी आप हो उस स्टेट या सिटी का नाम लिख दो राइट। आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है और रिसर्च करो, वाइडन करते जाओ अपने होराइजन। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करो, फिर अपनी सिटी से शुरू करो, फिर अपने स्टेट से शुरू करो, ठीक है, फिर ओवरऑल रीजन से शुरू करो, फिर कंट्री पे जाओ, इंडिया पे, ठीक है, फिर पूरे वर्ल्ड पे जाओ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इंटर रिलेटेड आपको जरूर मिल जाएगा, दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो प्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटर्स मतलब इफ यू कैन जस्ट टेल मी राइट नाउ, तो मैं आपको ऐसी कॉम्पिटिटर्स आपको बता सकता हूँ कि कौन से हैं, अगर इफ यू वांट टू टेल द आइडिया, अदरवाइज we can connect offline as well, so that is not an issue. Okay, Sahil, can you explain the need of funding for a startup, why funding is not required always? Sahil, funding probably, if you are a good startup, if you are a scaling up of startup, तो मैं यही बोलूँगा कि funding is always required. Why funding is always required? Because वहाँ पे ही आप scale कर पाते हो, आप ऐसे scale नहीं कर सकते। अगर आप
अच्छे से फंड्स नहीं ले रहे थे, ठीक है, वो वेदर आप इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स ले रहे हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हो, क्योंकि आपका जितना मर्जी प्रॉफिटेबल मॉडल हो, बिजनेस मॉडल हो, ठीक है, आपको आगे ग्रो करना है। और ग्रो कैसे कर सकते हो? ताकि आप फंडिंग उठा सको। और फंडिंग कैसे उठा सकते हो? आप कैसे इन्वेस्टर को बोल सकते हो? आप इन्वेस्टर को ऐसे ही बोलोगे कि यार मेरा ग्रोथ रेट पिछले 1 साल या 2 साल के बिजनेस में आप देखो 20% इंक्रीज हो रहा है, हर साल मेरा ग्रोथ रेट 20% इंक्रीज हो रहा है, तो आप 1 करोड़ रुपए लगाओ, मैं एक और ऑफिस खोलूंगा, मेरा ग्रोथ रेट और अच्छा हो जाएगा। मैं एक ऑफिस से मेरा ग्रोथ रेट ये है, तो सोचो मेरे 2 ऑफिस से ग्रोथ रेट कितने होंगे, मेरे 10 ऑफिस से ग्रोथ रेट कितने होंगे। तो आप 2 साल में इतना तो आपका ग्रोथ रेट अच्छा होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप 2 साल में 2 या 3 अलग अलग ऑफिस खोल के बैठ जाओ एकदम से इंस्टेंट, ठीक है, या अनटिल यू डोंट हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी, ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप लोग 2 अलग अलग टेरिटरीज में आप इजीली बिजनेस कर सको, right? And if it's not only limited to the states I'm talking about, it's also about international market. बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो आज रजिस्टर करा देते हैं सिंगापुर, यूएस, इजराइल। और ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपका कोई भी कजन है जो कि एक सिटीजन है डिफरेंट कंट्रीज का, या एक फ्रेंड है डिफरेंट कंट्री में एक रेजिडेंट है, आप लोगों को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं करा सकते। कुछ फीस होती है थोड़ी सी छोटी सी, आप उनको बोलो अपने नाम पे रजिस्टर कराए, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, और उस बंदे को नॉन रेजिडेंट कंट्री का आप डायरेक्टर दिखा दो, राइट? तो वो बहुत चीज़ों में इजीली हो जाता है काम। सो इट्स नथिंग टफ, राइट? बट आपको फंडिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्केल अप योर वेंचर, स्केल अप योर बिजनेस। ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं होता जिसको फंडिंग रिक्वायर नहीं होती। लेकिन बार बार मैं यही चीज़ बोलूँगा, फंडिंग इज नॉट दी ओनली थिंग, funding is not the only thing, right? There are n number of things, but funding will be required once you are at the, probably I'll say, you are the pre-revenue or revenue stage। अपने आइडिएशन स्टेज पे हो, अगर आप प्रोटोटाइप स्टेज पे हो, तो आप ग्रांट्स की तरफ जाओ, फंडिंग की तरफ मत जाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टर्स के पीछे पड़ जाओगे, इन्वेस्टर्स 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स don't entertain the people who are at the ideation or prototype stage. Literally my firm also doesn't entertain। तो या तो बहुत यूनिक आपने कोई प्रोटोटाइप बनाया कि हाँ जो आज तक मार्केट में कभी बना ही नहीं है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट इफ इट्स नॉट अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ फंडिंग एट स्टार्ट, राइट? तो उसके लिए आप पहले ग्रांट्स बनाओ, उसके लिए आप बिजनेस मॉडल बनाओ, उसके लिए आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ, ठीक है। एंड एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, बिजनेस मॉडल में हमेशा ये देखना, until unless you are an NGO और until unless you are doing it for the society, 5% प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मान के चलना कि आपको 5% तो कमाना है, चाहे आपका बिजनेस महंगा है, सर्विसेज महंगा है, कोई चक्कर नहीं है। 5% प्रॉफिट रेट हमेशा लेके चलना। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट रेट स्टार्टिंग से नहीं लेके चल रहे, आप कहोगे कि यार नहीं पहले मैंने कस्टमर एक्वायर करना है, ऐसा नहीं होता। कस्टमर आप एक्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप उसके लिए आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मॉडल्स बनाया, प्रीमियम बेस्ड मॉडल, ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल आप अप्लाई कर सकते हो, जो आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे ले आएगा। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में दिखाना अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग से ही अपना मॉडल जो है उसके अंदर लिखना कि मैं अगर 500 रुपये कमा रहा हूँ महीने का एक कस्टमर से, सो वो 500 रुपये में मेरे रिसोर्सेज, मेरा घर का और मेरे ऑफिस का रेंट, मेरे सारे रिसोर्सेज लगा के मेरे पास 5% तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को 500 रुपये में से 25 रुपये तो मेरी पॉकेट में जा रहे हैं सीधा, उसमें ना मेरे स्टार्टअप के ना कुछ है, वो सीधा 25 रुपये मेरी जेब में। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे, आप कहोगे कि यार मैं पहले मार्केट कैप्चर कर लूँ, लो कैप्चर, आप फिर लोग ही कैप्चर कर पाओगे, फिर आप बर्न रेट पे पैसा उठाते रहोगे, और वो बर्न रेट पे पैसा उठाते उठाते ना आपका एक दिन स्टार्टअप बंद हो जाएगा। एंड ऐसे आई हैव सेवरल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हु हैव एक्चुअली गॉट फंडेड एंड फेल्ड मिजरेबली फेल्ड। वो क्यों? क्योंकि वो बर्न रेट पे पैसा उठाई जा रहे थे, नेगेटिव में पैसा उठाई जा रहे थे लोगों से, और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट मतलब कुछ हुआ, क्रैश हुई और स्टार्टअप उड़ गया, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, जो फाउंडर खुद था उसके पैसे डूब गए, सब खराब। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा अपने स्टार्टअप पे लेके चलना, राइट?
Okay. So Sahil, I hope it helped you, right? Okay. So Falcon sir, we can just highlight our target market and then indicate that we are going to target 1 to 2 to 5% of that market in next 5 years. Yes, definitely. और फैल्कन जब आप अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दिखा रहे हो, आप सिर्फ 5 साल के मत दिखाओ. ये 5 साल पता नहीं कहाँ किसने डिफाइन करा है कि आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे कर लेंगे और हम लोग नेक्स्ट 5 years का. आप इसमें छोटे आप ऐसे भी बना सकते हो, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म में आप दिखा दो कि फॉर द नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 9 months, नेक्स्ट 1 year क्या गोल है, कैसे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग मार्केट कैप्चर कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म गोल नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 9 years. तो आप लोग अगेन दिखा सकते हो, राइट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स. तो ऐसा नहीं है प्रोजेक्शन में हाँ कि आज आप ये दिखा रहे हो कि मेरा ग्रोथ ऐसे चल रहा है और मेरा नेक्स्ट 5 years में इतना ग्रोथ हो जाएगा. अरे आप शॉर्ट टर्म गोल भी तो दिखाओ कि शॉर्ट टर्म गोल कैसे है, हाउ यू आर अचीविंग दैट. So please mention that in your presentation as well, short term goal and long term goal, right? This will help. But funding requires once you validate your business on many dilute their plan at seed stage, only thinking of their funding. Yes Sahil, absolutely. बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो स्टार्टिंग में सीड फंड लेने के चक्कर में अपनी इक्विटी 10-15% दे देते हैं और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ता है क्योंकि यार कोई आपसे अगर फंडिंग के लिए पैसे मांगता है ना, बहुत सारे इकोसिस्टम प्लेयर्स है जो कहते हैं कि यार हमारे को रिटेनरशिप फी दो, आप रिटेनरशिप फी दे दो, बट इक्विटी डाइल्यूट मत करना ऐसे इकोसिस्टम प्लेयर्स पे. इक्विटी अगर आप दे भी रहे हो तो उनसे एक बॉन्ड साइन करा दो कि 1-2 साल बाद आप मुझे इक्विटी वापस दे रहे हो. बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे इक्विटी मांगेंगे, ठीक है, until unless you don't think it's a worth ecosystem player या it's a worth mentor or it's a worth investor, प्लीज अपनी इक्विटी नहीं देना. आपको आज शायद रियलाइज नहीं होगा लेकिन आगे जाके रियलाइज होगा. इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपके स्टार्टअप की इक्विटी के अंदर शेयर्स आते हैं, वो शेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप एक स्टार्टअप बन रहे हो, कल को आप स्टार्टअप से आप अपना यूनिकॉर्न बनने के बाद आप अपनी आईपीओ बनाओगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को शेयर्स बांटोगे, ठीक है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है गाइस. प्लीज इक्विटी बहुत मतलब कैसे बोलूं मैं, इक्विटी बहुत सोच समझ के किसी को देना, ठीक है. दे रहे हो तो उनसे एक बॉन्ड साइन करा दो कि यार 1 साल बाद आपको वापस मेरे को इक्विटी ट्रांसफर करनी होगी, जितनी की भी होगी मैं उस टाइम वापस खरीद लूंगा, ठीक है. सो प्लीज okay Mender, just an example, we are developing a medical device or a diagnostic kit for the first time for a particular disease or condition and it has never been made, so how can we look for the competitors in that case? So Heminder, if you are creating a product like this, सबसे पहले तो I'll request, क्योंकि आप एक मेडिकल डिवाइस बना रहे हो, डायग्नोस्टिक किट बना रहे हो, उसके लिए सबसे पहले आप लॉ ऑफिस जाओ या अपनी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लो, पेटेंट करो फाइल. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इट, ठीक है. और जब पेटेंट फाइल करोगे ना तो आपको अपने आप लॉ ऑफिस बोल देगा कि यार ये पहले इंप्लीमेंट हो चुका है, नहीं हो चुका. सबसे सिंपल तरीका ही है, राइट. थोड़ा पेटेंट में आई नो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसे अच्छे खासे लगते हैं. प्रोविजनल पेटेंट के लिए तो थोड़े कम ही लगते हैं लेकिन लगते हैं. बट आप एक बार पेटेंट ऑफिस जाओगे, वहाँ पे उनको बोलोगे कि आपका एक यूनिक प्रोडक्ट है. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस. सर्विसेज में आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है. यू कैन पेटेंट योर प्रोसेस और आइदर यू कैन पेटेंट अ प्रोडक्ट, ठीक है. सो जब आप पेटेंट एक प्रोडक्ट के लिए करने जा रहे हो तो आपको एक बारी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या वो डायमेंशंस दे रहे हो, क्या चीज़ें दे रहे हो, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कैसे बनाया गया है. तो आप वो एक लॉ ऑफिस दोगे और उनसे बोलोगे कि मेरा ये एक बारी फाइंड आउट कर दो. वो अपने आप फाइंड आउट करते हैं कि ये पूरे पहले एक होता है कंट्री स्पेसिफिक पेटेंट, एक होता है वर्ल्ड वाइड पेटेंट, राइट. तो आप कंट्री स्पेसिफिक सबसे पहले लॉयर्स आपको बोलेंगे या जो भी काम करते हैं पेटेंट ऑफिस में, वो आपको बोलेंगे कि हम लोग एक बारी कंट्री स्पेसिफिक देखेंगे सबसे पहले. तो आपको इतना पता चल जाएगा इंडिया में वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना, फिर तो आपका ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं. लेकिन अगर है तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप अपना ऑनलाइन सर्च करते रहो. सो दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. My context of asking this was to let whether actually need to look out for funding. Thank you so much. Nilesh Singh, online store or offline store, which one is good for clothing brand? Nilesh, I'll say offline and online both. Clothing brand में तो both. ऑफलाइन में ये है कि आप लोगों को प्रेजेंस दिखा सकते हो, लोगों से अपना जो क्लोथिंग है उसका आप मटेरियल दिखा सकते हो, राइट. ऑनलाइन आप ज़्यादा तरीके से स्केल कर सकते हो. सो मैं तो दोनों के फेवर में हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. ऑफलाइन में आप स्पेसिफिक लोगों को दिखा सकते हो कि मेरा एक ऑफलाइन स्टोर है, आके कपड़े टेस्ट करके चले जाओ. ऑनलाइन में टेस्टिंग वगैरह करना
एक प्रॉब्लम होती है, राइट? तो आप ऑनलाइन में बेच सकते हो। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ऑनलाइन आप पैसे बना सकते हो, ऑफलाइन आप अपनी क्वालिटी दिखा सकते हो। दैट इज व्हाट हाउ आई विल से how ideas and proposals are protected once it is submitted on startup or facilitated by agency. It's noteworthy. So Mukesh, ideas and proposals mostly are protected, no whether it's a government agency, whether it's an incubator, whether it's an accelerator, तो हर कोई आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराता है। जब भी वो एग्रीमेंट साइन कराता है, प्लीज जरा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। उसके अंदर लिखा होता है उस एग्रीमेंट्स में मोस्टली, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जब बात आती है, ऑब्वियसली वो लोग आपका आइडिया क्या किसको ही देंगे, ठीक है? और अगर दे भी देंगे, बार बार मैं बोलते आया हूँ, आपका एक एप्लीकेशन प्रोसेस, आपकी प्रोसेस एक अलग होगी, जो आइडिया चुरा रहा है उसकी एक प्रोसेस फ्लो अलग होगी, राइट? आइडिया कॉपी हो सकता है, एग्जीक्यूशन कभी कॉपी नहीं हो सकती है, राइट? सो आइडियाज प्रपोजल्स जो भी है, इसको प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, एंड आई एम श्योर आप लोग ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, समझ सकते हो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, नई थोड़ी नॉलेज लेनी है। मतलब आई हैव सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली मैं भी वो उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली कैसे। कुछ नॉलेज है, मैं आपको थोड़ी बहुत पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में बता दूंगा, तो वहाँ से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो अपनी चीज़ों की, ठीक है? और अगर आप किसी भी स्टार्टअप फैसिलिटेटर के ऊपर अपना आइडिया डालते हो, तो उसमें लिखा होता है कहीं ना कहीं कि आपके जो आइडियाज़ है वो हम लोग सिक्योर करके रखेंगे, वी वोंट फॉरवर्ड इट। तो वहाँ पे आप, या वो एक टर्म अगर नहीं लिखी है एग्रीमेंट में, तो आप उनको बोल सकते हो, तो कोई ऐसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगेन, फॉर सिक्योर थिंग्स यू कैन डू दैट, तो एग्रीमेंट वगैरह में आप देख सकते हो। भारती चौहान सर, हाउ कैन वी फोरकास्ट सेल्स? सो भारती, फोरकास्ट सेल्स करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। पहले मार्केट में उतरो, सेल करके देखो। सेल भी, सेल से पहले एक आता है प्री सेल, तो प्री सेल करके देखो। सो प्री सेल करने का मैं आपको एक बहुत सिंपल और बहुत चीज़ें बताता हूँ। जैसे MI फोन्स, Xiaomi के फोन्स, राइट? उसने क्या करा था, सबसे पहले ना प्री सेल करने की कोशिश करता है वो। प्री सेल मतलब कि बुकिंग, आप बुक करवा दो वो फोन, ठीक है? आईफोन है आजकल, वो भी बुक तो, बट Xiaomi ने बहुत पहले 2015-16 में ही करना शुरू कर दिया था, और बहुत तगड़ा, कि 2 मिनट में सेल होगी, आप पहले बुक करा दोगे, आपका स्लॉट वो 2 मिनट में आएगी नहीं, राइट? तो आप लोग प्री सेल्स करवाना शुरू कर सकते हो। तो पहले अगर आपका देखता है कि आप प्री सेल्स में, अगर आपका एक प्रोडक्ट है, अगर आपकी वो सर्विसेज के थ्रू आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, और आपको लगता है कि प्री सेल्स में बहुत लोगों ने इंक्वायर करा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्स अच्छी होने वाली है, और आपकी फोरकास्ट सेल्स आप उसमें डाल सकते हो इजीली। सो दैट इज वन वेरी सिंपल थिंग आई कैन से, कि आप अपना प्री सेल्स पहले करके देखो। आप देखो कि मार्केट कितना आपसे डिमांड कर रही है, कितना मार्केट आपको बोल रही है कि हाँ, these are the things which is very very important to do, and this is how you can do it. So probably वो मार्केट डिमांड जो बोलेगी उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। सिंपल है, कस्टमर और क्लाइंट हमेशा भगवान बराबर होते हैं, तो जो भगवान बोलेंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में जाएंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई कैन टेल यू, राइट? सो फोरकास्ट सेल्स आप सिंपल कर सकते हो कि, मतलब अगेन वही है कि आपने प्री सेल करके देख लिया, मार्केट में इतनी डिमांड आपने क्रिएट कर दी, लोग आपसे लेना शुरू हो गए या लोग नहीं ले रहे हैं, उसके बेस के ऊपर आप डाल सकते हो, आगे फोरकास्ट कर सकते हो। दैट्स अगेन आई विल से। So Falcon, okay sir, got it. The pitch deck template of the Tata is guiding like that. Absolutely Falcon, Tata की आपने I'm sure देख ली होगी। Sahil, thank you. Hemender, thank you. Mukesh, thank you. Anyone else guys? It's I think so. Already हम लोग 1 घंटा plus हो गए हैं, right? 1 hour 5 minutes. But anyone who would like to ask any kind of other questions or answers, I would be more than happy to help anything. वरना फिर टाटा बाय बाय करते हैं and offline मिलते हैं। And it might be a vague question, but what we can innovate in Grover's idea according to the demand of JNK? Just 2 lines, sir. Okay, यार अगर मैं ही आइडिया दे दूंगा तो मैं ही ना स्टार्टअप खोलूँ। बट या, सो इनोवेट करने के लिए ग्रोफर्स में, यार देखो अगेन देखो ना, ग्रोफर्स क्या चीज़ नहीं बेच रहा है, ठीक है? ग्रोफर्स क्या चीज़ नहीं बेच रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप देख सकते हो, अगर ग्रोफर्स वेजिटेबल्स और क्या बोलते हैं, फ्रूट्स और चीज़ें बेच रहा है, तो आप लोग क्या स्वीट्स भी बेच सकते हो उसमें, ठीक है? जम्मू में और क्या चीज़ें ऐसी, देखो हर स्टेट की एक अपनी ना डेलिकेसी होती है, एक अपना फूड का एक स्पेशलिटी होती है, राइट?
देखो क्या वो ऑनलाइन कहीं पे आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब वो चीजें भी डालो, राइट। जो भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, देखो जम्मू रीजन अगेन वही यार, जम्मू कश्मीर मतलब रीजन वाइज मैं यही बोलूंगा कि अगर एक आप लोग का आई डोंट रिमेम्बर हु वाज देयर 2018-19 में आई मेड अ स्टार्टअप, और उसने ना एप्पल रिलेटेड, आई नो कश्मीर के एप्पल सबने सुने होंगे, कोई कश्मीर का ही स्टार्टअप था, उन्होंने एप्पल बेचने शुरू करे थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने ऑल ओवर इंडिया कैप्चर कर दिया था मार्केट। सो अगेन आप कैप्चर करने को आप मार्केट मतलब अपनी स्पेशलिटी से आप कैप्चर कर सकते हो। देखो जम्मू में ऐसी क्या चीज़ है, एक छोटी से छोटी चीज़ है, का अचार भी है, राइट। तो अचार अगर वो आप स्केल कर सकते हो कि नहीं, राइट, अगर कोई जम्मू का स्पेसिफिक चीज़ है, तो ग्रोफर्स में भी अगर इनोवेशन लाना है तो आप ये चीज़ें ऐसी देख सकते हो कि जो ऐसे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स है, चाहे वो ग्रोफर्स हो, बिग बास्केट हो, वो क्या चीज़ है उनके पास जो ऑलरेडी और मार्केट में नहीं है। अगेन थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा रिसर्च मिलेगी, लेकिन इफ यू कैन सी दैट प्रोबेबली यू कैन easily innovate your idea according to the need। तो अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो दे ही नहीं रहे, ग्रोफर्स नहीं दे रहे, बिग बास्केट नहीं दे रहे, तो आप लोग वो चीज़ उस आइडिया में घुसेड़ दो और बेचना शुरू कर दो और देखो कि मार्केट कैसे करिए। सो दैट इज लाइक जस्ट वन ऑफ अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ एन एग्जांपल। बट इसमें तो यार मतलब मैं यही बोलूँगा, अगेन थोड़ी रिसर्च लगेगी कि आप ग्रोफर से कैसे डिफरेंट कर सकते हो। अगेन ग्रोफर्स अगर वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड स्टफ दे रहा है, तो आप लोग और क्या चीज़ें दे सकते हो, ठीक है, और वो चीज़ों की डिमांड कितनी है। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी टू दैट कि डिमांड, अगेन डिमांड क्या है लोगों की। तो आप जैसे कि आपने भी अपने एंड में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ JNK पीपल, तो आप पूछो तो सही JNK लोगों को क्या चाहिए, राइट। JNK लोग कहते हैं कि हमें तो यार मतलब कोई बहुत देसी सी चीज़ चाहिए, तो आप मुझे वो दोगे तो बढ़िया है, ठीक है। जैसे JNK में वो बड़ा माना जाता है केसर, राइट। तो केसर जो है अगर वो आप लोग इजीली बेच सकते हो, और कैसे बेच सकते हो, उसके भी बहुत लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं और बहुत चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन अगेन द स्टफ इज वेरी यूनिक, जो शायद सिर्फ JNK टेरिटरी में ही अब पाई जाती है अच्छे से, तो वो आप लोग आगे कैसे बेच सकते हो। सो अगेन दैट डिपेंड्स। सो मतलब वही है, डिमांड आप तभी पता कर सकते हो जब आप लोगों से बात करोगे, लोगों से बात करोगे आपको डिमांड समझ में आ जाएगी और आप लोग वो यूनिक आइडिया अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट्स द सिंपल थिंग आई कैन से। सो मतलब दो, आई डोंट नो ये आपका नाम क्या, एक तो माय ओपिनियन करके नाम है ना, सो माय ओपिनियन जी, आप लोग यू कैन कनेक्ट मी ऑफलाइन, आपके पास कोई भी आइडिया वी कैन इम्प्लीमेंट एंड वी कैन टुगेदर वर्क ऑन दैट, सो दैट इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। Falcon, you are saying please say something about incubation offers. सो गाइज लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ बोली थी, आज भी मैं ये चीज़ बोलूँगा और कल भी मैं यही बोलूँगा। द फर्स्ट स्टेप वंस यू हैव एन आइडिया, गो टू एनी इंक्यूबेशन सेंटर नियर अबाउट योर एरिया, ठीक है, और उनको जाके अपना आइडिया रिप्रेजेंट करो। जम्मू कश्मीर रीजन में हो तो SMVDO इज वन ऑफ द बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स आउट देयर। आप लोग स्वारकर सर को पकड़ो, आप लोग स्वाति मैम को पकड़ो और उनको बोलो मेरा आइडिया सुनो, जान खा जाओ उनकी, उनको बोलो मेरा आइडिया सुनो, राइट। और उनको आइडिया सुनाने के बाद उनको बोलो कि मैम सर आप लोग मेरी कैसे हेल्प करोगे मुझे ग्रो करने में, ठीक है, व्हाट आर द फैसिलिटीज यू विल प्रोवाइड एंड इन रिटर्न व्हाट यू नीड, ठीक है। मेरे आई डोंट थिंक सो एनी इंक्यूबेशन सेंटर चार्जेस, इक्विटी जरूर ले सकते हैं, बट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है तो वो भी नहीं लेते हैं, तो उनके अपने बिजनेस मॉडल होते हैं। लेकिन अगेन आप लोग उनसे पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें चाहिए, क्या पेपर वर्क चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ किसी कहीं पे भी हो इंक्यूबेशन पे अप्लाई करो। एक इंक्यूबेशन सेंटर नहीं, इंडिया रीजन में 130+ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव मेरे ख्याल से 70+ हैं, या आप शायद नंबर्स और ज़्यादा हैं, राइट, क्योंकि हर 6 महीने में ये जो AIC है, जो DBICs हैं, ये बढ़ते रहते हैं, राइट। तो आप लोग इट्स अ वेरी वेरी लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड टू एवरीवन कि आप लोग प्लीज़ एक बारी इंक्यूबेशन एटमॉस्फेयर एक बारी ट्राई आउट कर लो। 1 साल का मोस्टली होता है, 6 महीने से 1 साल का इंक्यूबेशन पीरियड एक बारी ले लो, आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कभी आपको लगेगा हाँ नहीं करवा रहे, कभी आपको बहुत वेग लगेगा, कहोगे कि यार क्या करवा रहे, बट उसमें से अगर आप एक सेशन भी ऐसा मेरे मतलब आई वॉन्ट से, मैं तो ठीक है नॉर्मली आगे चिट चैट करके चले जाऊंगा, बट मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे एज अ मेंटर सेशन, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सारे कनेक्ट्स आते हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू 31 पीपल आउट देयर राइट नाउ हु आर अटेंडिंग माय सेशन, 31 में से अगर मेरे को 5 भी पकड़ के रखते हैं,
आज से 6 महीने बाद भी, और बहुत सारे मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रखे, बहुत लोगों के साथ मैं आज तक एसोसिएटेड हूँ, और कहीं ना कहीं फ्रैंकली मैंने बहुत लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिलवाए, बहुत लोगों से मॉनेटरी बेनिफिट्स मैंने भी लिए, राइट। तो वो टू वे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ है जब आप लोग आ रहे हो, अब जैसे आप लोग यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर सकते हो, आप लोग किसी भी वर्कशॉप जाते हो, अटेंड करते हो, स्टार्ट ब्रांडिंग आउट ना, वहां पे स्मार्ट बनो। अब जैसे ये फैल्कन इंटरनेशनल है, इसने बता दिया कि इसकी कंपनी का नाम तो फैल्कन इंटरनेशनल है राइट। तो इस आप लोगों को सबको पता चल गया कि एक टीम आ रखी थी फैल्कन इंटरनेशनल करके, उसके बारे में रिसर्च करोगे, अगर उसका एसईओ अच्छा है, उसकी वेबसाइट है, तो सबको पता चल जाएगा फैल्कन इंटरनेशनल क्या है। तो आप लोग जब भी ऐसा कोई सेशन अटेंड करो, अपने बारे में लिखते जाओ। दैट इज स्मार्ट वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग, दैट इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। सो ये नहीं कि आप कोई सेशन अटेंड करके आ रहे हो तो सुन के इंटरेक्ट करके चले गए, लोगों से बात करो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लोगों को बताओ कि आप कौन हो, क्या हो। So again, this is very, very important, right? Okay. Anything else? I hope Falcon, I have answered your query. Mukesh, is startup registration and paperwork full digitalized or still need to visit off? Mukesh, 90% of the things are not digitalized. 10% में भी है कि जाके आपको शक्ल दिखानी होगी, या आपको जाके कहीं पे सिग्नेचर करना होगा, या आपको कहीं पे अंगूठा लगाना होगा, वो रहेगा। बाकी 90% तो हर गवर्नमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में डिजिटलाइज हो चुका है, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू डू रजिस्टर योर स्टार्टअप फॉर्म, राइट। And Rupesh, absolutely, Swakar sir, SM Video team is one of the best and helpful ecosystem player in Jammu and Kashmir. Absolutely, thank you, Mr. Kamla Kannan. I'm sorry, Pondicherry se ho aap sir. Great to see this. Ki you are like virtually connecting me from Pondicherry, one of the best places I have ever helped. Falcon, thank you. Akib sir, yes, he is one of my really good friends till date. Right. Thank you so much everyone. It's been pleasure. आप लोग मुझे again, if you want to really connect with me, you have my numbers. If you don't have, you can take from SM Video team. Social media पे आप लोग मेरे को easily connect कर सकते हो. Again, Akarshan Sethi is very unique name, I would say. So you can obviously connect with me. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. मैं इन सब में एक्टिव रहता हूँ, तो आकर्षण AA से आप सर्च करोगे, मेरा नाम इजीली मिल जाऊंगा आपको, एंड यू कैन connect with me offline and we can then definitely grow each other. So because मैं भी आप लोगों से सीखूंगा, आप भी मेरे से सीखोगे, so definitely it is a two-way learning as always, right? Thank you so much, Mr. Mukesh. Anyone else or bye bye करा जाए? Happy Sunday. Falcon, up easily. Okay, I'll just, you can drop me a WhatsApp on this number. I'm just giving my WhatsApp number. So I've given my WhatsApp number. You can WhatsApp me. बाकी आकर्षण सर है, so you can definitely क्या बोलते हैं, contact me. Facebook, Instagram, LinkedIn. Again, it's very easy to connect me over there. Thank you so much, guys. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was a wonderful session. As I always say that when you connect with your audience, it is always a wonderful one-on-one discussion that you have done. I am going to bug you more maybe next coming Sure, day. ma'am. Any time, ma'am. Anytime. I would be more than happy. Yes, thank you so much, Akarshan, and thank you everyone for joining in. I can see there are few people who are the returning participants. So thank you for keeping up with the pace and joining all the sessions of SM Video TBIC. We have given our email ID. Any questions, any queries, if you want to connect with any of the mentors, just drop a note. We are going to help you on that aspect. Okay. And we also have another couple of sessions in the coming days. Please join those as well. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you, Swakar sir. Great Sunday. You too, Thank you so ma'am. much. Thanks. Thanks, everyone.